Okay. Good morning, everyone. So, in the yesterday's class, we were learned about support vector machine. Um, in the case of support vector machine, we have learned that how the linear classifier are. In the case of perceptron, we used as the linear classifier as we have the one positive sample and one negative sample. So to separate out the positive sample from the negative sample, Dipanshu, if you want to ask anything, then please unmute yourself. So what we have done to separate out the positive sample from the negative sample, we have tried to get a line. The equation of that line is wx plus b equal to 0. So we have used this function, the sine function, for wx plus b. The value wx plus b greater than 0 would return a positive sample, and wx plus b less than 0 would return a negative sample. So in this case, we have learned that this is the line wx plus b. But this line could be of any shape. This is here, it could be here, it could be any of these lines. So which one is correct? We want to find that. So this is the starting of the support vector machine. In this case, what we are trying to find that which of these would be the best line. So to find out the best one, we have defined that there is a line and we are having some margin for this. So some margin is that is the width of that line that can be increased so that it can touch the boundary points. So boundary points are those points which is touched by the line which is touched at +1 or -1 sample. So we are trying to find a line or a region for which this margin is or this width is maximum. That is known as maximum margin in the case of support vector machine. On these points, the positive sample and the negative sample data points, we produce the support vectors. Support vectors are those data points that the margin pushes up against. Pushes up against means we pass a perpendicular from these points, so that perpendicular will result in the maximum distance from the line to the data point. So when we have computed this, we have found that suppose there are 2 points, one is x plus and another one is x minus data point. x plus data point के लिए हमने अगर m/2 मार्जिन लिया है तो x माइनस के लिए भी m/2 है, टोटल m मार्जिन है. m is the margin width. So how we try to compute it? Suppose the inner line is wx plus b equal to 0. Now when it is touching the positive sample, that is the +1 sample, so that is the point wx plus b equal to 1. और उसके बाद wx plus b more than 1 above it, जो हमने पीछे लिया था. Then नेगेटिव सैंपल के लिए wx plus b equal to 1 और इसके नीचे वाला wx plus b less than 1. So these are the points wx plus b equal to 1 and wx plus b equal to -1. ये जो लाइन्स हैं जिस पॉइंट से निकल रही हैं, दैट पॉइंट इज द बाउंड्री पॉइंट. सो with this we will solve the margin width, and we came to know that the margin width come out to be 2 over the amplitude w, and this amplitude w is then written as w transpose w. We have written in this w transpose w.
So if we are defining the SVM as the linear SVM, that is LSVM, in the case of linear SVM, we find that we can maximize the margin M as 2 over W, or this is same as minimize the W transpose W by 2. So in this case our optimization problem is that we want to minimize the function W transpose W by 2 subject to the condition that yi into Wxi plus b greater than equal to 1 for all I. हमें W और B के लिए इसको सॉल्व करना है. We want to solve it for W and B. Values of W and B. Please remember W and B are vectors, not a single value. मैंने वो कल बोला था ये वेक्टर्स होंगे जब दो थोड़े बोल्ड कलर में, डार्क कलर में. So we are trying to find the vectors W and B in a way that 1 over 2 W transpose W is minimized subject to condition yi is either +1 or -1. yi की वैल्यू either +1 हो सकती है या -1 हो सकती है. ये ट्रेनिंग डेटा से पता लगेगा वो क्या है. +1 या -1 का मतलब है कि पॉजिटिव सैंपल नेगेटिव सैंपल, इट कुड बी एनी वैल्यू, येस और नो, हम उसको +1 -1 बोलेंगे subject to condition that yi into wxi plus b greater than equal to 1 for all I. So with this we have find that कि अगर हम हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये है, और अगर हम जो स्टैंडर्ड उनसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं उनमें जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं या स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं इसके लिए क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन के, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे को डायरेक्टली दिया होता है कि दैट हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है फाइंड डब्ल्यू बी, बट हमें अब क्या मिला, हमें जो मिलता है मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर देखेंगे या कोई बुक में थ्योरी देखेंगे क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की. सो इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम we need to find alpha 1 alpha 2 alpha n such that quadratic alpha, that is q alpha, quadratic function of alpha is equal to summation alpha I minus 1 over 2 summation of the alpha I product of the alpha I alpha j yi yj and xi xj transpose. And in this case it is maximized और हमने क्या बनाया, minimized. और उसमें कंडीशन क्या है हमारे पास, डब्ल्यू वाई आई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी ग्रेटर देन 1. अगर कि वहाँ पे क्या कंडीशन होती हैं, समेशन अल्फा आई वाई आई इक्वल टू 0 एंड द अल्फा आई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए आई. तो हम अपनी प्रॉब्लम को इसमें लेके आएंगे जब भी हम किसी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से या हम जो इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल हैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो then we will try to convert our problem into this form. Then we have find that if we choose this one, this as the our quadratic optimization problem, so its direct solution is given, the weight vector is given by summation alpha I into yi xi and the b as yk minus w transpose xk for any xk such that ak is not equal to 0. ये solution directly available है, and the classifying function is of this form, that is summation alpha I yi xi transpose into x plus b. ये directly available solution है for the case of this Lagrangian multiplier alpha. अगर ये है तो उस केस में ये डायरेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है. तो हम इस चीज़ को अपनी प्रॉब्लम को इस सॉल्यूशन को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे कन्वर्ट करना. और इस केस में हमने पढ़ा था कि दैट it relies on the inner product between the test point xi and
एक्स एंड द सपोर्ट वेक्टर एक्स जे। तो अगर ये फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये फंक्शन में क्या है, समीशन अल्फा आई इंटू वाई आई एक्स आई ट्रांसपोज इंटू एक्स। अब एक्स भी एक वेक्टर है, दूसरा एक्स भी एक वेक्टर है। एक एक्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट पॉइंट वेक्टर एक्स, दूसरा पॉइंट क्या है, सपोर्ट वेक्टर एक्स। So the test point vector x and the support vector x, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है। अगर आप देखो तो एक्स आई ट्रांसपोज इनटू एक्स है तो सेम ही एक्स, बट इट इज रिटन इन अ डिफरेंट वे। मतलब वो जैसे रो वाइज रीड कर लिया, वो कॉलम वाइज रीड कर लिया, या एक पूरी मैट्रिक्स हो गई या एक पूरा वेक्टर हो गया, इस तरह से। अगर एक्स पूरा टेस्ट पॉइंट पूरा वेक्टर है, एक पूरा पूरी मैट्रिक्स है, तो सपोर्ट वेक्टर सिर्फ एक वैल्यू होगी, एक वेक्टर उसके अंदर। Also keep in mind that solving the optimization problem involves computing the inner product. ये important है। That is whenever you need to solve this f function, आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, xi ट्रांसपोज इंटू xj between all pair of training point। इसका यूज हम आज करेंगे, देखेंगे कैसे। So with this the revision part is over. Then we were studying about what is hard margin and what is soft margin in the case of support vector machine। हार्ड मार्जिन क्या है, सपोज यहाँ पर आपको कुछ डेटा सेट इस तरह का डेटा सेट मिला हुआ, जो फील्ड सर्कल्स हैं वो +1 है, जो एम्प्टी सर्कल्स हैं वो -1 है। तो सपोज जो +1 है वो सारे इस तरफ हैं और जो -1 है वो इस तरफ है। पर एक बात ये देखने वाली है, अगर ये वाला पॉइंट एक +1 वाला इस तरफ आ गया तो हमारा जो, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली हम ट्रेनिंग वैल्यू बना रहे हैं, जो ट्रेनिंग डाटा जो हम बना रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग एरर ना हो, हम चाहते हैं कि 100% ट्रेनिंग का रिजल्ट एक्यूरेट आए, तो उस केस में हमारे को जो इसके लिए क्लासीफायर बनाना पड़ेगा। वो क्लासीफायर कैसे क्लासीफाई करेगा, वो इस तरह का उसकी बाउंड्री होगी, इस तरह की बाउंड्री होगी ताकि वो सारे डाटा पॉइंट को करेक्टली क्लासीफाई कर ले ट्रेनिंग वाले। तो अगर इस तरह का डाटा पॉइंट है, डाटा सेट है, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिकॉज इसमें हम चाहते हैं नो ट्रेनिंग एरर। एक पॉइंट ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो उसको चेंज कर रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो हमारे पॉइंट जो है वो किधर क्लासीफाई करेगा। तो इसके लिए हमें पूरा we have to completely cover this region, indicating +1 and this one is indicating +1, the outer one, and the inner one is indicating the -1। तो हमारी बाउंड्री ये सेट हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मान लो कि यही वाला जो +1 है वो नॉइजी है। अगर वो नॉइजी है मतलब वो गलत, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप हार्ड मार्जिन दे रहे हैं, हार्ड मार्जिन का मतलब है कि बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेनिंग रिजल्ट आए। एक्यूरेट ट्रेनिंग रिजल्ट वुड रिजल्ट इन दैट नो ट्रेनिंग एरर, so the zero training error would result because of we can use the kernels for this, powerful, very powerful kernels, but by we use the very powerful kernel, the result is overfitting. This is an overfit network. How it is an overfit? That we have defined the boundary for each and every point of the data set. हमें नहीं पता वो एरर है या नहीं है, but we have defined the accurate boundary for the data point। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम सॉफ्ट मार्जिन यूज़ करें। अब सॉफ्ट मार्जिन कैसे यूज़ करें, मान लो इसी केस में मैं बात करता हूँ, तो अगर ये डाटा सेट में मान लो कि नॉइजी है, मैं इसको ले लेता हूँ एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो मैंने ये मान लेता हूँ कि ये डाटा सेट जो है मैंने ये मान लिया कि ये वाला डेटा सेट ये नॉइजी है। ओके, अगर मैंने ये माना है कि ये डेटा सेट नॉइजी डेटा सेट है तो मेरा जो काम है वो इतना मुझे हार्ड ओवरफिट नहीं करना पड़ेगा। आई रिमूव दिस एज एन आउटलायर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना जो ये भी आप मान सकते हो कि ये भी नॉइजी है, और अगर मैं सिंपली इसको ये ले लूँ, देखो कितना इजीली क्लासीफाई हो गया। बिल्कुल दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने इसको मान लिया ये भी नॉइजी है, तो इसको भी कंसिडर नहीं किया, मैंने इसे भी मान लिया ये भी नॉइजी है, क्योंकि ये दोनों डाटा पॉइंट ऐसे हैं जो कि दूसरे की स्पेस में एंटर कर रहे हैं। अगर इतना हार्ड मार्जिन अगर आप नहीं लेते तो देखो, यू कैन क्लियरली डिफाइन इट एज इन वेरी सिंपल वे। बट क्यों मान ले नॉइजी, दैट इज वन पॉइंट, और कैसे मान ले नॉइजी, दैट इज अनदर पॉइंट। नाउ सपोज कमिंग बैक टू दैट स्लाइड, तो अगर आप बिल्कुल प्रिसाइज बाउंड्री दे रहे हैं तो ये हार्ड मार्जिन है। अब मैं बोलता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि वो डाटा पॉइंट जहाँ से भी पास कर रहा है कुछ पॉइंट जो हैं वो नॉइजी हैं, और अगर मैं उसको ऐसा लेके चलता हूँ, देन आई कैन डिफाइन द सॉफ्ट मार्जिन बाय इंट्रोड्यूसिंग सम स्लैक वेरिएबल बीटा आई। अब वो स्लैक वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट था डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन वन वाला या इक्वल टू वन वाला, या डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन वाला, ये वाला पॉइंट नहीं है। इस केस में हम ये मानते हैं कि ये जो है बाउंड्री से जीटा एप्सिलॉन एप्सिलॉन वन डिस्टेंस दूर है, ये वाला पॉइंट एप्सिलॉन टू डिस्टेंस दूर है, बट बाउंड्री ये वाला पॉइंट से नहीं है, अगर मैं इसको आउटलेयर मान लेता हूँ। सिमिलरली ये वाला पॉइंट एप्सिलॉन सेवन डिस्टेंस दूर है, बाकी सब केसेस के लिए मैं ले रहा हूँ, मतलब मैं क्लोजर वाले वो नहीं ले रहा, मैं दूर के पॉइंट को भी बाउंड्री लेके चल रहा हूँ। मैं ये मान नहीं रहा कि बाउंड्री मेरी इतनी कम होगी, मेरा मार्जिन इतना कम होगा। अगर मैं अपना मार्जिन बढ़ा लेता हूँ तो मैं मान सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो स्ट्रांगली क्लासीफाई हो रखे होंगे। तो मैं इन पॉइंट्स की वैल्यू को ज़्यादा कंसिडर ना करके मैं लेता हूँ एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन सेवन, एप्सिलॉन थ्री, फोर, फाइव, सिक्स फॉर ऑल दीज पॉइंट्स। तो मैंने जो इसी मार्जिन था उसको हार्ड लेने के बजाय कि हाँ यही बाउंड्री है, यही पॉजिटिव सैंपल है, यहाँ से पॉजिटिव सैंपल शुरू है, यहाँ से नेगेटिव सैंपल है, ये नहीं माना। मैंने ये मान लिया कि हाँ वहाँ से पास पास के जो पॉइंट हैं वो हमारे जो हैं वो पॉइंट सॉफ्ट मार्जिन में है, हार्ड मार्जिन में नहीं है, वो पॉइंट या तो मिस क्लासीफाई हो रखे हैं। So slack variables can be added to allow misclassification of difficult or noisy example. So in the case of misclassification in the case of misclassification of the difficult or the noisy example, we introduce slack variable epsilon to our function. So our what should be our quadratic optimization criteria? पहले क्या क्राइटेरिया था हमारा, मिनिमाइज W ट्रांसपोज W, ये था क्राइटेरिया बाय टू। अब हमारा क्राइटेरिया क्या होगा इस केस में, ये हमने क्या कर दिया, पहले हमारे पास क्राइटेरिया था मिनिमाइज वन ओवर टू डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू, ये क्राइटेरिया था। अब हमने क्या कर दिया, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करने के बाद एक कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस किया, सी की कहानी बताऊंगा बाद में। सी के केस में बाकी हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमाइज डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू बाय टू प्लस C times for k equal to 1 to R is the total number of slack variable introduced,
for each of the data point, boundary data point, summation of epsilon k. So for all this, we have introduced the slack variables. So it will result in the soft margin. पहले हमारे पास क्या हो रहा था, जैसे ये हार्ड बाउंड्री आ रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट हार्ड बाउंड्री। इस केस में अगर मैं इसको ये लेके चलता हूँ, ये आउट लेयर है या ये भी आउट लेयर है, तो मेरी जो बाउंड्री हो जाती है वो इस तरह से मैंने जो अभी बनाई थी वैसी हो जाएगी, राइट। तो क्लासीफाई करना आसान हो गया और मेरा मार्जिन भी बड़ा दिखने लगा, मुझे इतना हार्डली क्लासीफाई नहीं करना पड़ा। So my soft margin is giving me some point to allow the misclassification by introducing the slack variable. तो हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन से मेरी प्रॉब्लम में क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब हार्ड मार्जिन ले रहा था तो मैं क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या डिफाइन कर रहा था, फाइंड W and D such that phi W, that is optimization function, W transpose W by 2 need to minimize for all values of xi yi pair such that yi into W transpose x plus D greater than 1. ये थी। अब मेरी क्या, अगर मैं सॉफ्ट मार्जिन लेता हूँ तो मेरी नई प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? It will incorporate the slack variables and my problem would become find W and D. अभी भी W और D निकालने, W is a vector, D is a scalar, W dark है, B is light है। So W and D you need to compute, मतलब W में क्या होगा, W1, W2, W3, W3, Wn इन वैल्यूज होगी W में, और D में एक वैल्यू होगी, that is a constant also known as bias। अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? You need to compute phi W, you need to minimize phi W in a way that phi W is W transpose W by 2, जो कि ऊपर था, प्लस summation of the C times summation of the epsilon I of the zeta I, and that is need to minimize for all values of xi yi pair such that yi into W transpose xi plus D is greater than, उसमें क्या था 1 और इसमें क्या है 1 माइनस zeta I for all I and the zeta i's are greater than 0. Zeta I are the greater than 0. This is a problem with the, when you introduce the slack variables in the slack variable when you introduce the soft margin in the system. So this is why we will write the new formulation with the soft margin, and parameter C can be viewed as a way to control overfitting. जितना ज़्यादा पैरामीटर C लोगे उतनी ओवरफिटिंग कम हो जाएगी, कम लोगे ओवरफिटिंग ज़्यादा चलेगी। बिकॉज C को 0 ले लो तो 100% ये कहाँ चला जाएगा? हार्ड मार्जिन की तरफ, क्योंकि W ट्रांसपोज W इंटू 1/2, और C को बहुत ज़्यादा ले लो तो W ट्रांसपोज W की जो वैल्यू है उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीटा आई की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। सो इट इज़ द पैरामीटर विच कैन कंट्रोल ओवरफिटिंग। So in the case of linear SVM, the classifier is a hyperplane, separating hyperplane. Most important training points are support vectors that define the hyperplane. लीनियर एसवीएम की बात कर रहा हूँ, ये अभी नॉन लीनियर की बात कर रहे थे हम ऊपर। लीनियर एसवीएम हमने पहले पढ़े थे। लीनियर एसवीएम क्या होता है? जो कि लीनियरली दोनों को सेपरेट कर देते हैं। जैसे हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा था, वो एक लाइन से सेपरेट हो गया, बट डेटा जो है वो मोर देन 2 डायमेंशन भी हो सकता है। डज नॉट classify with a single line,
it need to classify with the separating hyperplane, that is linear SVM property. In the case of linear SVM, training points are support vectors that define the hyperplane. ट्रेनिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम सपोर्ट वेक्टर खींच रहे हैं, डेटा पॉइंट से सपोर्ट वेक्टर खींचो, सपोर्ट वेक्टर पुल करो तो हम हमारे को क्या मिलता है, अगर हम सारे पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट से मान लो सपोर्ट वेक्टर परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो जहाँ पे वो पॉइंट मिलेंगे हम वो हाइपरप्लेन डिफाइन कर सकते हैं. सो इट मीन्स ट्रेनिंग पॉइंट्स आर द सपोर्ट वेक्टर दैट डिफाइन द hyperplane. Quadratic optimization problems can identify which training points xi are support vector with non-zero Lagrangian multiplier alpha I. ये important है. Quadratic optimization problem क्या कर सकती हैं? Can identify which training points xi are support vector. Quadratic optimization algorithms can identify which training point xi are support vectors. कौन कौन से xi जो हैं वो support vector होंगे, and it should be the non-zero Lagrangian multiplier alpha I for them. Both in the dual optimization formulation of the problem and in the solution of the training point appear inside dot product. Both in the dual problem formulation of the problem and the solution training points appear only inside dot product. ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब हमने ये बताया था कि इसके अंदर सिर्फ xi और xj की इनर प्रोडक्ट है इन द केस ऑफ लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन केस में हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या, फाइंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सच दैट द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस. Now in this case we have defined that is equal to summation alpha I minus 1 over 2 summation alpha I into alpha j yi yj xi transpose xj is maximized for alpha I yi equal to 0 and all the values of alpha I exist between 0 to c for all values of alpha, and this is having my output function as summation अल्फा आई वाई आई एक्स आई ट्रांसपोज एक्स प्लस बी. ये जनरल क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. अगर हम लीनियर एसवीएम की बात करते हैं तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, और अगर हम नॉन लीनियर एसवीएम की बात करते हैं तो क्या होगा. नॉन लीनियर एसवीएम मतलब, लीनियर एसवीएम मतलब जो एक प्लेन से, एक हाइपर प्लेन से अलग हो जाए, और नॉन लीनियर मतलब जिसे आप लीनियरली सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे कि डाटा सेट दैट आर लीनियरली सेपरेबल विद सम नॉइज वर्कआउट ग्रेड. जैसे कि ये डाटा सेट है, कुछ डाटा सेट में ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ब्लू वाले और कुछ में ये नेगेटिव पॉइंट है सपोज रेड वाले. नाउ इन द केस ऑफ दिस लाइन, अगर आप ये लाइन पुल कर रहे हैं तो डाटा पॉइंट्स एक साइड राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले इजीली सेपरेट हो रहे हैं विद अ सिंगल लाइन, सो इट इज अ लीनियरली सेपरेबल. और जो ये पॉइंट के सर्कल में दिखा रखे हैं, द ब्लू सर्कल एंड द रेड पॉइंट इन अ सर्कल, रेड डाटा पॉइंट इन अ सर्कल, इट मीन्स इट इज द सपोर्ट वेक्टर. These are the support vector points. Now, but what we are going to do if the data set is just too hard. अगर डेटा सेट इस तरह का कि हम उसे क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, सपोज अगर इस तरह का डाटा पॉइंट है, इसमें 4 रेड पॉइंट हैं, देन 3 ब्लू पॉइंट है, देन 3 रेड पॉइंट है. अब इस तरह के डाटा सेट को अलग करने के लिए हम इसे लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं. हम किसी भी तरह से एक लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. There is no way that we can separate out these two data sets with a just single line. So what to do in this case? In this case, we need to do that we need to map into the higher dimensional space.
हाई डायमेंशनल स्पेस में हम इसे अगर मैप कर देते हैं तो हम इसे एक लाइन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज इसी केस में ले लेते हैं, अगर मैं ये मान लूँ कि ये वाले जो रेड पॉइंट हैं ये कह रहे हैं कि ये बाहर की तरफ है और जो ब्लू वाले पॉइंट हैं वो इस अंदर की तरफ है, तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट स्क्रीन से बाहर है, ब्लू वाले पॉइंट स्क्रीन के अंदर है, ये इंडिकेट कर रहे हैं और आप तो सामने से देख रहे हो। तो स्क्रीन क्या होगी मेरी, स्क्रीन एक तरह की लीनियरली ब्लू पॉइंट और रेड पॉइंट्स को अलग कर पा रही है। सिमिलरली अगर आपने क्या करा, उसे हायर डायमेंशनल डाटा स्पेस पे मैप कर दिया, या मैप दैट टू द हायर डायमेंशनल डाटा स्पेस। जैसे इस केस में हमने किया, ये वाले जो पॉइंट थे ब्लू वाले ये नीचे आ गए और जो रेड वाले पॉइंट थे वो ऊपर चले गए। बट अभी आप ऊपर से देखो तो आपको ये कैसे दिख रहे थे, एक लाइन में दिख रहे थे। मैंने मैप पे ऐसे किया, एक्स स्क्वायर से मैप कर दिया, मतलब जो वैल्यू एक्स की है, जो यहाँ एक्स की वैल्यू थी वो वहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर पे मैप कर दिया, तो ये एक पैराबोला शेप में आ गए। तो अब मुझे एक लाइन से सेपरेट आउट करना इन्हें आसान हो गया। और वही जो पॉइंट बाउंड्री पे हैं, जो कि सपोर्ट वेक्टर पॉइंट्स हैं, वो आपको एक पॉइंट एंड विद शोन विद अ सर्कल इन इट। तो नॉन लीनियर एसवीएम में हम क्या कर सकते हैं, हम उसे हाई डायमेंशन में मैप कर देंगे, देन वी कैन इजीली एबल टू क्लासिफाई विद द hyperplane. That is the function of the non-linear SVM. So in the case of non-linear SVM, we need to define feature spaces. The general idea is that the original input phase can always be mapped to the higher dimensional feature space. It is in one feature space we map to the higher dimensional feature space where the training set is easily separable with the hyperplane. जैसे कि ये डाटा सेट है, अब ये डाटा सेट, इसमें ब्लू डाटा सेट है, वो बाहर की तरफ है, जो रेड वाला है वो अंदर की तरफ है। अब सर्कल से तो आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो कि सर्कल के अंदर वाले रेड है, सर्कल के बाहर वाले ब्लू है। बट सर्कल जो है वो कैसे क्लासीफाई करोगे, क्योंकि हमारा जो लीनियर एसवीएम है वो तो हाइपर प्लेन बनाता है, वो तो एक प्लेन बनाएगा ना, तो हम इसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी मैप एक्स टू सम फाई ऑफ एक्स, दैट इज टू सम हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस। तो अब इसमें क्या करा, जो रेड वाले पॉइंट है वो नीचे की तरफ चले गए, 3 डायमेंशनल स्पेस में डाल दिया था, और जो ब्लू वाले पॉइंट है वो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। पॉइंट सेम है, ये वाले रेड वाले इधर आ गए, ब्लू वाले इधर आ गए। अब आपने बीच में एक हाइपरप्लेन डाल के यू हैव सेपरेटेड आउट। So this is the way that how we can separate out the with the non-linear SVM. Now important thing in the case of non-linear SVM is that we use the kernel trick. अब kernel trick क्या है? It's an important for examination point of view very much. That in the case of kernel trick, the linear classifier relies on the dot product between vectors. ये हमने पहले पढ़ा था, मैंने अभी बताया था आपको that the linear classifier is dependent on the dot product xi transpose xj. तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करें कि k times xi xj is some multiplication of xi xj. So we need to define every data point that is mapped into high dimensional space via some transformation phi, that is x goes to phi x. तो हमारी जो ये डॉट प्रोडक्ट पहले हम लोग लीनियर में एक्स आई ट्रांसपोज एक्स कर रहे थे, अगर मैं इसको हायर डायमेंशन में मैप कर देता हूँ, तो इन दैट केस माई दिस डॉट प्रोडक्ट एक्स आई इंटू एक्स ट्रांसपोज, आई कैन राइट इट एज द फाई एक्स आई ट्रांसपोज एंड फाई एक्स जे, the multiplication of phi xi transpose and the xj, that is the dot product, and this is the now the given kernel. This is the case of non-linear and this is the case of linear. Please remember, linear के केस में xi और xi ट्रांसपोज का सिंपल डॉट प्रोडक्ट हो जाता है,
बट नॉन लीनियर के केस में आपने क्या करा, xi को ही मैप कर दिया हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में अब वो लीनियर बन गया, तो लीनियर की तरह आप उसे मैप कर सकते हो। तो लीनियर की तरह मैप करने के लिए वी कैन हैव xi ट्रांसपोज xj, बट मैंने उसे दूसरी फीचर स्पेस में डाल दिया तो आपके पास फाई xi ट्रांसपोज आया, दूसरी तरफ फाई xj आया। तो इस केस में हमने क्या करा, फाई फंक्शन डिफाइन करा। फाई को हम क्या बोलते हैं, कर्नल फंक्शन। सो ए कर्नल फंक्शन इज सम फंक्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द इनर प्रोडक्ट इन सम एक्सटेंडेड फीचर स्पेस। हम फाई को जो मैपिंग फंक्शन है इसको ना बोल के कर्नल, हम कर्नल बोलेंगे के विच इज नथिंग बट द फाई xi ट्रांसपोज इनटू फाई xj। तो हम कर्नल के थ्रू उसको कर्नल में डॉट प्रोडक्ट लगा के हम उसको मैप कर लेंगे। अब इस केस में सपोज मैं एग्जांपल को लेता हूँ, से आई एम हैविंग टू डायमेंशनल वेक्टर दैट इज सम x इज x1 x2, दो पॉइंट है x वेक्टर के अंदर x1 और x2। सपोज द कर्नल फॉर दिस x वेक्टर इज 1 over xi ट्रांसपोज इनटू xj होल स्क्वायर। इसमें xi ट्रांसपोज इनटू xj का यूज हुआ, ये सम फंक्शन होता है। तो कर्नल फंक्शन में अगर मैं नॉन लीनियर के लिए लगाता हूँ तो मैं इस तरह का कोई फंक्शन लिख सकता हूँ, फाई xi ट्रांसपोज इनटू फाई xj। मतलब अगर ये ट्रू मानूं, दैट इज x is x1 x2 and k that is my kernel is 1 plus xi transpose into xj whole square. So I need to show that the kernel has phi xi transpose into phi xj। अब इसको कैसे शो कर सकते हैं, सपोज कर्नल मैंने ली 1 plus xi transpose whole square into xi transpose into xj whole square। Now I will expand it out, then you will get 1 plus xi1 whole square into xj1 whole square plus 2 xi1 xj1 xi1 xi2 xj2 plus xi2 whole square xj2 whole square xi1 xj1 into 2 plus xi2 into xj2 into 2। तो हर xi xj के अंदर दो वैल्यू है x1 x2, और इसको अगर आपने ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करते हैं तो आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो आई सजेस्ट कि आप इसको डायरेक्टली मत देखो, आप इसको करके देखना, और स्टिल अगर इसमें आपको कोई डाउट लगे तो पूछना। तो आई कैन सेपरेट आउट दिस कंप्लीट समेशन एज वन वेक्टर एज दिस वन, दैट इज 1 xi1 whole square square root of 2 xi1 x2 xi2 whole square square root of 2 xi1 square root of 2 xi2 transpose into the same vector, again the same vector 1 xj1 whole square root 2 xj1 into xj2 plus xj2 whole square root 2 xj1 into root 2 xj2। तो एक फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया, फाई एक्स आई, और दूसरे फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, फाई एक्स जे। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई तो प्रूव हो गया दैट इज कर्नल इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। उसमें क्या था, कर्नल लीनियर के केस में कर्नल क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन, whereas in the case of non-linear where the variable point this transformation phi, so in the case of non-linear my kernel would be the multiplication of the transformation function. So this is an important thing which we known as the kernel trick. So so in the next class we will follow next. If you have any doubt you can ask.